ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुर नदर करे निमख एक हर नाम दे मेरा मन तन शीतल होए बेसमार अथाह अगंत अतोले ज्यों बुलावा त्यों नानक दास बोले। सन्मानयोग सत्संगत जीओ, गुरमत गुरबाणी इतिहासिक विचारां आरंभ करां। पेशतर सतगुर दी बख्शी श्रीमद फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे विशेष दीवान दे विच जो थैंक्स गिविंग डे सारे मना रहे हैं, इस गुरु घर दे विच हाज़रीन सत्संगी जनों, परिपूर्ण परमात्मा ने जो कुछ भी सानू दिता है असी उहदा कोई मुल नहीं दे सकते। धन गुरु नानक साहब का आगमन पुरब आपां हुणे मनाया है, मना भी रहे हैं। ते गुरु नानक साहब की आद बाणी है जप। ध्यान नाल सरवण करना। जप बाणी धन गुरु नानक साहब की पहली बाणी है। गुरु ग्रंथ साहब जी की आरंभता भी जप बाणी तो है। वैसे बाणी का नाम जप है, असी सत्कार वजों कहने हैं जपजी साहब। जड़ा कॉन्टेंट है, तत्करा है, उहदे विच जप है, जप निशान है। जप बाणी च गुरु नानक साहब परिपूर्ण परमात्मा की महिमा वर्णन करदे आया एक उपदेश करते ने। महाराज कहते ने अमुल गुण अमुल व्यापार। मुल का मतलब है मुल, प्राइस। ते ओ मुल दे अगे ऐड़ा अगेतर लग जाए तो अमुल बन जाता है, प्राइसलैस, जिहदी कोई कीमत नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, हे प्रभु, हे निरंकार, हे परवदगार, तू अमुल है, तेरे गुण अमुल है। अमुल गुण अमुल व्यापार। जे ओ प्रभु अमुल है, ओदा कोई मुल नहीं है। तो मैं कई दफ़ा अर्ज की है, उतों जो कुछ भी सानू प्राप्त होया वो भी अमुल है, उहदी भी कोई कीमत नहीं है। सब तो पहलों प्रभु की किरपा नाल सानू ये तन प्राप्त होया है, शरीर प्राप्त होया है, ह्यूमन बॉडी प्राप्त हुई है। सब तो प्रथम ये तन प्राप्त होया है, शरीर प्राप्त होया है। फिर तन दे विच तन दे सुख साधन मिले हैं, परिवार मिले है, घर मिले है, मैं अर्ज करा रिश्तेदार मिले है, साग मिले है, संबंधी मिले है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की एक बाणी है, और वो बाणी सब तो ज़्यादा पढ़ी जाती है, सब तो ज़्यादा।
ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਚਨਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੂਪ ਐਨੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਰਚਨਾ, ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਮੁਕੱਦਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਗਲ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਬੇਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੁਖਮਨੀ। ਮਣੀ ਦਰਅਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਪ ਦੇ ਇੱਕ ਮਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਮਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਦੀ ਮਣੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਲਪਨਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਨਰੀ ਥਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਮਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਤਰ ਸੰਤ ਜਨ, ਰਿਸ਼ੀ ਜਨ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੇਅੰਤ ਦਫਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਰੀਬਨ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ, 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਪਰ ਗਾਲਬਨ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਪਾਠ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ ਟਵਾਣਾ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੰਤ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿੱਧ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ। ਮੈਂ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਉਹਦੀ ਦਰਅਸਲ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੰਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੌਂਟੀਨੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਡੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਰੋਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਸਤਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਥਾਈ ਫੂਡ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਬੇਅੰਤ ਪਦਾਰਥ ਬਣੇ ਹਨ।
तो गुरु नानक साहब के गुरपुरब से बॉबी वीर जी ने मैनू वीडियो भी भेजी, सारे पासे बेअंत पदार्थ। पर मैं बेनती करा, लोग थैंक्स करते हैं भी सानू खाण पीण लई मिलिया, ये भी बड़ा ज़रूरी है। कोई थैंक्स करता कि सानू इत्थे रहण दी अपरचुनिटी मिली, ये भी एक बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं बेनती करा, जिस कंट्री च आपां रह रहे हैं, जिथों की असी सिटीजनशिप लई है, तुसी शायद देखिया या नहीं देखिया, मैं अपनी अखां नाल देखिया लोग इत्थे वसन लई कितना क ज़्यादा औखे होंदे ने। वो मेरा ख्याल है कि तुसी ते मैं सोच ही नहीं सकते, सोच मंडल तो परे है। एक एक लत्त ते खलोते मैं तप करदियां देखे है कि इस मुल्क दे विच सानू रहना नसीब हो जाए। तो वो कितना क औखे हो रहे। शायद कल दी होई मैं न्यूज़ देख रहा सी, इंग्लिश चैनल यूरोप दे विच लंडन नूं जोड़दा, मेरा ख्याल है 25-30 बंदे कल ही उत्थे मर गए। तो इनू ड्रीम कंट्रीज़ कहते हैं जां ड्रीम वर्ल्ड कहते हैं। तो असी उस वाहिगुरू का थैंक्स कर रहे हाँ जिन्हें सानू खाण वास्ते दिता, रहन वास्ते दिता, अपरचुनिटी दिती, सुख दिता। ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की जिस पंक्ति की मैं विचार आप दे समस्त भेंट करनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु अर्जन साहब कहते हैं, हे मेरी रसना उस प्रभु का थैंक्स कर, धन्यवाद कर। गौड़ी सुखमनी दे विचों पंक्ति है, मैं आप जी के सामने रखा, ध्यान नाल सरवण करना, तवाज़ुन फराहम करना। साहब कहते हैं, 8 पहर सिमरो तिस रसना, रसना कहते हैं जुबान। कई हुक्मनामे ऐसे है वो महाराज ने जुबान नूं प्रेरणा दी है, उत्थे टंग नूं प्रेरणा दी है। मैं हुणे अंदर आ रहा सी ना दरबार हाल च, थे बाहर पहला ही हुक्मनामा शायद टोडी राग दा है पढ़िया, तो वह जिहड़ा पहला ही शब्द है रसना, गुण गोपाल नित गायन, शांत सहज रहस मन ही उपजियो सगले दुख पलायन, उथे भी रसना है, जुबान है। तो जदों गुरु अमरदास जी की बाणी पढ़ीए, उन्होंने शरीर नूं संबोधन किया है, कन्नां नूं संबोधन किया है, ये सरवणों मेरे हो साचे सुनने नो पठाए। तो फिर उथे गुरु अमरदास जी ने जुबान नूं भी प्रेरणा दी, ये रसना, जुबान नूं संबोधन किया है। मैं कई दफ़ा इस दे उत्ते लंबी विचार भी रखी है। दरअसल संसार दे नाल साडा सारा संबंध जुबान करके है, रसना करके है। मैं गुजारिश करा, ताड़ी 20 साल तो किसी ना बड़ी चंगी रिलेशनशिप है, हुणे 2 गालां कढ़ दिओ, भैड़े बोल बोल दिओ, 20 साल की वो जिहड़ी चंगी रिलेशनशिप है, गुड रिलेशनशिप, वो तो गई। वो 20 साल जड़ा ठीक सी व्यवहार, वो तो गया। पर वो जड़े भैड़े बोल बोले, परूथे बोल बोले, वो जड़े मंद बोल बोले, उन्हें महाभारत लिया दी। परिवारों च महाभारत शुरू हो जाती है, मुल्कों च महाभारत शुरू हो जाती है। संसार नाल साडा संबंध बोल के जुड़ता है, बोल बोल के साड़ी संसार दे नाल सांझ पैंदी है। पर निरंकार नाल भी साडा संबंध बोल के जुड़ता है, उत्थे भी बोलना है। सारी दुनिया दे विच बंदा कहता है मैं किसी नूं पहले देखा फिर बोलां फिर रिश्ता है। हुण बंदा कल्ला ही बोली जाए तो सामने दीवार ही होवे तो मैं अर्ज करा की है, कुछ भी नहीं है, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। बोलण वास्ते पहलों दिखना लाजमी है, पहले असी किसी नूं देखते हाँ फिर बोलते हाँ।
पर निरंकार दे जगत विच ऐसा नहीं है। परमात्मा दे जगत च ऐसा नहीं है कि पहले परमात्मा दिखाई दवे। असीं कंडीशन ये रखीए कि पहले वो दिखाई दवे तो असीं बोलीए, नहीं। गुरु नानक कहते ने उत्थे पहले बोलना है, दर्शन बाद दे विचों है। पहले बोलना है। गुरु नानक दे बोल महाराज कहते ने मोहों के बोलन बोलीए, पहले रसना तो बोल वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। रसना तो बोल गोबिंद गोबिंद गोबिंद। रसना तो बोल मधुसूदन मधुसूदन। मैं इसलिए कह रहा हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच अलग अलग भगत बैठे ने ते उन्हां सारियां दे गुरमंत्र अलग अलग है, एक अलग गुरमंत्र नहीं है। जयदेव गोबिंद गोबिंद जपते हैं, कबीर सतनाम सतनाम जपते हैं, नामदेव बीठल बीठल जपते हैं, फरीद अल्लाहू अल्लाहू जपते हैं। तो कई दफ़ा असी ये भी उलझ जाने हैं कि राम वड्डा है कि रहीम वड्डा है, करीम वड्डा है। वो गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं जहांगीर ने सवाल किया, खैर मैं उधर ना जावां। पहले बोलना है तो बोलना जुबान राही है, रसना राही है। रसना गुण गोपाल निध गाएं, शांत सहज रहस मन उपजो, सगले दुख पलाएं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गौड़ी सुखमनी च कहते हैं, 8 पहर सिमरो तिस रसना। हे मेरी जुबान, वो वाहिगुरु का शुकराना कर, धन्यवाद कर, थैंक्स कर ते बार बार कर। मैं बेनती करा उत्थे जिहड़ी पंक्ति है 8 पहर, आपां हुण टाइम नूं 24 घंटियां चों वंडदे हैं ना, तो 24 घंटियां चों 12 घंटे दिन दे ते 12 रात दे। वो 12-12 24 घंटियां का समा गुरु पीरियड दे विच मैं अर्ज करा जिहड़ा समा सी ना, वो पैरां दे विच समा सी, घड़ियां दे विच समा सी, वो आवर्स दे विच नहीं सी, वो पैरां दे विच चलदा सी। महाराज दे पहर आए ने, पहरे आए ने, 4 पहर दिन दे, 4 पहर रात दे। महाराज कहते हैं, हे मेरी रसना, उस प्रभु का शुकराना कर, धन्यवाद कर, थैंक्स कर। तो हुण एक प्रश्न पैदा होंदा, क्यों कर, कादे लई कर? क्योंकि बंदा है ना, वो हर गल दे उत्ते इफ लांदा है, वट लगांदा है, वाई लांदा है। अजकल के बच्चे तो खैर सवाल ही बड़े कर देंदे ने, वो प्रश्न ही बड़े कर देंदे ने। वो तुसी पढ़िया होएगा, कोई प्यो सी, कोई वालद सी, वो अपने बच्चे नूं कहंदा, द अडल्ट हिटलर सेज इन द दिस वर्ल्ड एनीथिंग नॉट पॉसीबल। वो हिटलर की एग्जाम्पल देंदा, कहंदा उन्हें हिटलर ने लिखिया है अपनी बायोग्राफी कि संसार च कुछ भी इंपॉसीबल नहीं है। वो 5 साल का बच्चा सी लागे, कहंदा पापा हिटलर ये कहंदा है कि कुछ भी इंपॉसीबल नहीं है। वो लागे उन्हें टूथपेस्ट पई सी, वो पेस्ट उन्हें बाहर कढ़ती, प्रैस किया, वो पेस्ट बाहर, कहंदा इनू वापस पा के दिखाओ, ये जिहड़ी पेस्ट है इनू वापस वो रिप्लेस करो। वो कहंदा है तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहंदा तुसी हिटलर की एग्जाम्पल दे रहे हो, कहंदा इंपॉसीबल कुछ नहीं है, पहले सामने जो है इनू तो पॉसीबल करो। मैं अर्ज कर रहा सी, मन सवाल करदा कि वो वाहिगुरु का थैंक्स क्यों करिए, धन्यवाद क्यों करिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज उसका जवाब दे रहे। साहब कहते हैं, हे मेरी रसना, ओदा थैंक्स कर, धन्यवाद कर। क्यों? ध्यान नाल सरवण करना। महाराज कहते हैं उन्हें सानू दातां दित्तियां हैं, ते हुण दातां दे विच उन्हें की कुछ दिता है, ओदी महाराज ने इत्थे लिस्ट दिती है, ओदा जिक्र किया। उन्हें सानू की कुछ दिता है, उन्हें सानू की दातां दित्तियां हैं। महाराज कहते ने, जह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, 8 पहर
सिमरो तिस रसना जह प्रसाद। मैं गुजारिश करा, मेरा ख्याल है दो बाणियां दे टीके सब तो ज़्यादा होए, जप बाणी ने जपजी साहब दे ते सुखमनी साहब दे सब तो ज़्यादा टीके इन्हां बाणियां दे होए। ते 9 सिख विद्वानां ने भी कीते, निर्मले महापुरुषां ने कीते, उदासियां ने कीते, प्रोफैसर साहब सिंह जी ने कीते, होर कईयां ने कीते, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने भी इहदा टीका कीता। ते भाई साहब भाई अमरजीत सिंह जी इस स्थान ते लंबे समय तो सेवा कर रहे विद्वान सज्जन हैं। आम तौर पर सिंपल जिहा शब्द है जय प्रसाद। आप सुखमनी साहब च बेअंत दफ़ा पढ़िया है, जय प्रसाद पीवे शीतल जला, जय प्रसाद आभूखण पहरीजे, बड़ी दफ़ा पढ़िया है, रिपीट होया, बार बार होया। जय प्रसाद बसे सुख मंदर, कोई शब्द बार बार आया है। जय प्रसाद का मतलब है जिस प्रभु की कृपा द्वारा, गल इको ही है, या जिस प्रभु की कृपा राही, मतलब इको ही है। महाराज कहते ने जिस प्रभु की कृपा राही तेनों सब तो वड्डी दात की मिली, जय प्रसाद ग्रह। इत्थे विश्राम, जिस प्रभु की कृपा राही सब तो वड्डी दात तेनों ग्रह मिलिया। ते ग्रह के मतलब है घर। ते हुण मैं बेनती करा, गुजारिश करा, घर दो तरह का है। एक घर वो है जिथे असी परिवार नाल रहने, फैमिली नाल रहने, बच्चे रहने, वो घर है, वो भी बड़ा जरूरी है। असी अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, यूरोप चले जाइए, नॉर्थ पोल ते चले जाइए, साउथ पोल ते चले जाइए, ईस्ट चले जाइए, बंदे की कोशिश तो यही है ना, पहले घर बनाया जाए, टिकाणा बनाया जाए। तो घर बाहर का होना बड़ा ज़रूरी भी है। बाबा फरीद जी ने एक उदाहरण दी, वो कहते हे निरंकार, हे वाहिगुरु, हे खुदा, हे करीम, हे रहीम, मेरे ते एक किरपा कर। पता बाबा फरीद उत्थे की कहते हैं, वो घर की गल कर रहे हैं। बाबा फरीद कहते हैं जे तू टुठा किरपा निदान, हे प्रभु जे तू टुठा है फरीदा बाहर पराइए बैसना, मैनू अपना कर दे। तो मैं ये भी बेनती करा, जदों गुरु इतिहास पढ़ीदा है, मैं कुछ उदाहरण भी दे दिया। धन गुरु अमरदास जी महाराज जदों गोइंदवाल साहब की धरती ते मुकद्दस जमीन ते धन गुरु रामदास जी नूं गुरियाई देंदे। गुरु रामदास जी महाराज गुरियाई ते विराजमान होंदे ते उसका जिक्र महाराज की बाणी च आया है। गुरु रामदास जी की गुरियाई ते बैठन का जिहड़ा जिक्र है वो गुरु ग्रंथ साहब विच है। उत्थे असी शब्द पढ़ते, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया, वो गुरियाई की वडियाई है। उत्थे गुरु अमरदास जी महाराज एक हुक्म करते हैं, पुरखा तू गोइंदवाल साहब छड्ड दे। ये वैसे हर गुरियाई च हुक्म है, तू गोइंदवाल छड्ड दे। सिख तवारी कहती है गुरु रामदास जी महाराज अपनी सुपत्नी बीबी बानी जी ते अपने तीनों ही सपुत्र प्रिथी चंद महादेव ते धन गुरु अर्जन साहब नूं नाल लैके अमृतसर की जमीन ते आए, धरती ते आए। वो उथे इंज कहिए उस वक्त जंगल है, कोई रास्ता ही नहीं पता लग रहा, घोर जंगल है। कवि जी ने इतिहास दे विच भाई वीर सिंह जी ने लिखा है, गुरु रामदास जी महाराज उत्थे सब तो पहले अपना घर बनाते हैं रहन लई। ते वो घर का पता की एड्रैस है, पता है, उसका नाम गुरुद्वारा गुरु कमैल है। तुसीं दर्शन कीते होणगे। वो अकाल तख्त साहब के बिल्कुल बगल च पिछले पासे। वो घर का नाम गुरु के महल है। महल का मतलब भी घर ही होंदा है।
गुरु रामदास जी उत्थे घर बनाते ने, उत्थे रहिंदे ने। तो मैं अर्ज करा गुरु अर्जन साहब भी उत्थे ही रहिंदे हैं परिवार नाल। फिर मैं अगांह चलना, धन गुरु हरगोबिंद साहब भी उत्थे ही रहिंदे ने। तो गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां दा हुण शहीदी पुरब भी आ रहा, महाराज का प्रकाश ही उस घर च होया है। तो इत्थे मैं बेनती करा, कार सेवा वाले महापुरख संत बाबा सेवा सिंह जी, संत बाबा भाग सिंह जी, महापुरख बड़े बंदगी वाले संत बाबा लाभ सिंह जी जो हुण संसार च नहीं रहे, मेरे नाल उन्होंने मैनू बहुत आशीर्वाद दिता। वो उतों की सेवा कराते सन। तो महाराज ने भी पहले घर बनाया जिथे परिवार रहिंदा है, गुरु के महल रहिंदे ने, गुरु के बच्चे रहिंदे ने, गुरु साहिबान दा संतान रहिंदी है। एक है घर जिथे परिवार रहिंदा है। हुण मैं गुजारिश करा, बंदा धन नाल, माया नाल, पदार्थां नाल घर भर सकता है, बड़ा वड्डा घर बना सकता है, बहुत वड्डा घर बना सकता है, वड्डे वड्डे घर तामीर कर सकता है। पर घर दे विच सुख ते शांति पदार्थां नाल नहीं लिया सकता, धन नाल नहीं लिया सकता। घर दे विच सुख ते शांति पता कदों आउंदी है? वो वाहिगुरू की कृपा जदों होंदी है। तुद भावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए। जिंदे ते वो कृपा करदा है उन्होंने सुख मिलता है। घर दे विच सुख प्रभु की अनुकंपा नाल मिलता है, रहमत नाल मिलता है। तो मैं अर्ज कर रहा सी, एक घर वो है जिथे परिवार रहिंदा है, पर एक साडा शरीर रूपी भी ये भी घर ही है, ये भी घर ही है। ते इस घर दे विच कौन रहिंदा है? इत्थे परिवार दे बाहर रहिंदा है, इस घर दे विच निरंकार खुद रहिंदा है। वो वाहिगुरू आप रहिंदा है। जिन्हों कोई बाहर बंदा खोज रहा है, पहाड़ों च, जंगलों च, सागरां च, दरियावां च, मंदिरां च, मस्जिदां दे विच, वो जो निरंकार है वो इस घर दे विच रहिंदा है। ते जदों तिकर वो अंदर है, ये घर है शरीर रूपी, मैं अर्ज करा वो जे निकल गया तो ये शरीर रूपी घर भी खत्म है, मन भी खत्म है, तन भी खत्म है, सब कुछ खत्म ही खत्म है। उस हालत दे विच धन गुरु तेग बहादुर साहब ने ये शरीर रूपी घर का पता की जिक्र किया है। गुरु तेग बहादुर साहब के बड़े कीमती बोल, महाराज कहते हैं, जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रेत कर बागी। वो सारे कहते परे हो जाओ, परे हो जाओ। हुण तो खैर संसार दे विच जिस तरह का दौर, मेरा ख्याल है जदों दी मनुखता बनी है, तुसीं देखिया, मैं देखिया, इन्ना क्रिटिकल दौर शायद मनुखता ते कदी आया ही ना होवे। करोना दे विच जो कैजुअलिटी हुई, इंडिया दे विच लोग डैड बॉडी तो भी जड़े आ भज रहे, दौड़ रहे। उत्थे गंगा दे विच बहाईयां गईयां। कानपुर दे विच मैं पिक्चर देखियां, ਉਹਦੇ लागे कोई जाण नूं तैयार नहीं होया, कई कुछ होया। तो मैनू धन गुरु तेग बहादुर साहब दे जदों मैं पिक्चर देखदा ही ना, वही बोल याद आई जान। महाराज सही कह रहे ने, जब ही हंस तजीए काया, प्रेत प्रेत कर भागी। सारे कहते ने परे हो जाओ, परे हो जाओ, परे हो जाओ, परे हो जाओ, छोड़ दिओ, छोड़ दिओ। मैं अर्ज करा, एक शरीर रूपी घर है जिहदे विच निरंकार रहिंदा है। तो जदों तक वो निरंकार शरीर रूपी घर दे विच है, सारे शरीर दे सुख हैं, सारे शरीर दे आनंद हैं। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, जिस प्रभु ने पहले घर दिता है, चाहे प्रसाद, ग्रह, ग्रह का मतलब घर, चाहे वह घर का घर है, चाहे वह शरीर रूपी घर है, चाहे प्रसाद, ग्रह, संग, सुख,
बसना। फिर होर की दिता उन्हें, शरीर रूपी घर, बाहर रूपी घर नहीं दिता, सुख भी दिते। जय प्रसाद ग्रह संग, वो सारे साख संबंधी दिते। सुख बसना, सुखां दा वासा दिता, सुखां दा निवास दिता। आठ पहर सिमरो तिस रसना, हे मेरी जुबान वो वाहिगुरु का शुकराना कर, क्योंकि वो आप अमुल है, ओदा कोई मुल नहीं है। तो मैं ये भी अर्ज करा, उन्हें जो कुछ सानू दिता वो भी अमुल है, ओदा भी कोई मुल नहीं है। मैं अखीर दे विच एक उदाहरण दे हाँ। भगत नामदेव जी महाराज ने अपनी बाणी च दिता है। श्री नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र तो चले सौराष्ट्र, ते सौराष्ट्र तो चलदियां गुजरात, गुजरात दे नाल एक बड़ा वड्डा इलाका पैंदा है, जैसलमेर का इलाका। उन्होंने मेवाड़ का इलाका भी कहते हैं, मारवाड़ का इलाका भी कहते हैं। उत्थे पानी की बड़ी भारी किल्लत है। सिर दे उत्ते मटके रख के अज की डेट में भी उतों दीयां जड़ियां लड़कियां हैं वो गालबन 10-10 किलोमीटर तो पानी लियांदियां, 3-3 4-4 मटके सिर दे उत्ते चुके हुए अज भी। उन्होंने जैसलमेर का इलाका कहते हैं, मारवाड़ भी कहते हैं। बड़ी वड्डी रियासत सी। महाराणा प्रताप के समय भगत नामदेव जी ने उसका जिक्र किया है। किसी टाइम ते भाई साहब भाई चतर सिंह जी ये शब्द नूं गायन भी करते सन। श्री नामदेव जी के बोल हैं, मारवाड़ जैसे नीर बाला बेल बाला कराला। नामदेव कहते हैं, हे भगवान, हे बीठल, हे निरंकार, हे गोबिंद, हे गोपाल, हे मधुसूदन, मैनू तेरे नाल प्यार है। किंज मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा, मुक्तसरी, जिमें मारवाड़ के निवासी नू पानी प्यारा है। मारवाड़ जैसे नीर बाला, उधर की भाषा का ही शब्द है, मेवाड़ी उन्होंने भाषा कहते हैं। वो श्री नामदेव कहते हैं, जिमें मारवाड़ के निवासी नू पानी प्यारा है, हे बीठल मैनू इंज तू प्यारा है। मैं बेनती करा, बंदा पानी का गिलास पींदा है, प्यासा होया है, थकिया होया है, अकिया होया है, तो वह पानी का गिलास कोई दे दवे तो बंदा भावें दुश्मन भी होवे कहता थैंक्स, धन्यवाद। धन गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कभी उस निरंकार का भी शुकराना कर जिन्हें पानी बनाया है। मैं बेनती करा, असी धरती ते रहने हैं तो धरती 5 तत्तां करके चलती है, शरीर 5 तत्तां करके चल रहा है। तो कई बार मैं एक सोचता है, सिर्फ एक पानी ना हो, सिर्फ एक ताती ना हो, पानी वाटर, तो आप रह ही नहीं सकते, किन्नी कि देर जीवांगे। महाराज कहते हैं, वो प्रभु का शुक्र कर जिन्हें पीण लई पानी दिता, खाण लई भोजन दिता, पहनण लई कपड़े दिते, परिवार दिता, धन दिता, संपदा दिता, उसका शुकराना कर। तो अज असी उस वाहिगुरु दीयां दित्तियां दातां दा शुकराना करिए, बार बार करिए, क्योंकि वो अमुल है, उहदियां दातां अमुल हैं। इतनी सेवा प्रवान करनी, हार्दिक शुभकामनावां। महाराज रहमत करन। ऐतवार के दीवान दे विच गुरु नानक साहब के परम सिख, परम मित्र, परम अदीब, परम कीर्तनीय भाई मरदाना जी का अकाल चलाना दिन है। दास भाई मरदाना जी ते विचारा रखेगा। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। वीर जी सचदेव जी बड़े प्यार नाल मैनू मिलते हैं, तो मैं ये भी बेनती करदा, हरचरण सिंह जी सुचदेव, मैं भी अमेरिका आउण तो पहले थाईलैंड ही गया सी, बैंकॉक ही गया सी, तो उतों की जिहड़ी संगत है, गुरुद्वारा मस्कीन साहब ने किताब च भी जिक्र किया, बड़ा बाकमाल है, उन्हों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। अगला प्रोग्राम सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी